ओके, व्हाट वी वर डूइंग, लाइफ पोजीशन तक हो गया था, राइट? Yes, ma'am. अब हम लोग का बस स्ट्रोकिंग बचा है ट्रांजैक्शन एनालिसिस में. सो राइट डाउन स्ट्रोकिंग, STROKING. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय स्ट्रोकिंग. देखिए, जब भी किसी चीज के लिए रिकॉग्निशन मिलता है, दैट इज स्ट्रोकिंग. ऑलराइट, कोई भी काम आप कर रहे हैं और अगर आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, शाबाशी मिल रही है, कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अप्रेजल मिल रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव भी होता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव नहीं होता है. नेगेटिव भी अगर आपको मतलब रिकॉग्निशन मिल रहा है तो दैट विल आल्सो कम इन स्ट्रोकिंग ओनली. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज के लिए क्रिटिसाइज हो रहे हैं तो स्ट्रोकिंग पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. ठीक है, आप लिखेंगे कैसे? राइट डाउन. अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ इट? अब लिखिए. Stroking is an important aspect. Stroking is an important aspect. Stroking is an important aspect of transactional analysis. Of transactional analysis. It is, full stop के बाद, it is, क्या हुआ श्रेयांश? Not able to hear me? Yes, ma'am. कुछ नहीं. Write down. Stroking is an important aspect of transactional analysis. Full stop. It is defined as any act. It is defined as any act implying recognition. It is defined as any act implying recognition. Any act implying recognition of another's presence. Of another's presence. Another's का apostrophe s. ठीक है, paragraph change and write down. People seek recognition. People seek recognition. People seek recognition in interaction with other. In interaction with other. Need not to remind, जिनका कैमरा ऑफ है उनको अटेंडेंस नहीं मिलेगा. In fact, I'll start removing them without any notification. Every day I should not repeat the same thing. अब बिना बोले रिमूव करना शुरू कर दूंगी. People seek recognition in interaction with other. हो गया? Full stop. Lack of stroking has its consequences. Lack of stroking has its consequences. Both on psychological and physiological well-being of the person. Well-being of the person. अब बुलेट पॉइंट में लिखिए, the quantity and quality of strokes. The quantity and quality of stroke. The quantity and quality of the stroke serve as either positive or negative motivation for employees. So next bullet point, a good share of satisfaction. Next bullet point, a good share of satisfaction we get from work depends on the दोबारा रिपीट कर रही हूँ. A good share of satisfaction we get from work depends on the strokes available
from other people. Stroke available from other people. Next bullet point. We can get stroke. We can get strokes. We can get strokes from the activities of work itself. From the activity of work itself. मैम ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए ना. We get strokes from the activities of work itself. Then for Yes, sir. positive result, for positive results on the job. क्या? मैम इसी में या फिर नेक्स्ट पॉइंट. हाँ, next point. Stroking का ही next bullet point. For positive results on the job, it is crucial to give positive strokes. For positive results on the job, it is crucial to give positive strokes. Full stop. If the person does not get proper strokes, if the person does not get proper strokes, he learns to manipulate the environment. He learns to manipulate the environment to get strokes. He learned to manipulate environment to get strokes. Then there are two types of strokes. There are two types of strokes. Positive and negative. Positive and negative. ठीक है? Positive में लिखिए the stroke that makes one feel okay. The stroke that makes one feel okay. The stroke that makes one feel okay is a positive stroke. Like word of recognition, comma, affection, ठीक है. नॉन वर्बल में भी अगर पैट मिलता है, पैट ऑन द बैक, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव स्ट्रोक. ठीक है, पैट ऑन द बैक, कॉमा, पैट ऑन द बैक, ईटीसी एक्सेट्रा कर लीजिए. ठीक है. नेगेटिव क्या हुआ? नेगेटिव स्ट्रोक राइट डाउन. That makes one feel as not okay. That makes one feel not okay. Criticism, hating and scolding are the example of negative strokes. Criticism, hating and scolding are the example of negative stroke. तो ये था सारा आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. ठीक है. एक और है आप लोगों का साइकोलॉजिकल गेम. ठीक है, उस पर तो कभी शॉर्ट नोट्स नहीं आया, बट एटलीस्ट पता होना चाहिए क्या होता है साइकोलॉजिकल गेम. ठीक है, राइट डाउन नाउ. ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का ही साइकोलॉजिकल गेम. साइकोलॉजिकल गेम is a set of transaction with three characteristics. मैम इसका हेडिंग साइकोलॉजिकल गेम. ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में ही मैंने बताया आपको कितने टाइप का हुआ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. एक सेल्फ अवेयरनेस के लिए कौन सा था?
सेल्फ अवेयरनेस के लिए, अपने आप को जानने के लिए। जोहारी विंडोज, जोहरी विंडो, वेरी गुड। और क्या बताया गया था? ईगो स्टेट, ईगो स्टेट, हाँ, और उसमें पेरेंट्स पैरेलल चाइल्ड ईगो, हाँ, ईगो स्टेट के अंदर लाइफ होता है, और पोजीशन, लाइफ 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 पोजीशन, पोजीशन, हाँ, उसके Yeah. बाद अब ये है आपका स्टोकिंग, और उसके बाद है साइकोलॉजिकल। इतना ही है ट्रांजैक्शन एनालिसिस आपको, यस, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप है। तो साइकोलॉजिकल गेम लिख लीजिए, ये लिख लिए, इज अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन विद 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 लिखिए, द ट्रांजैक्शन टेंड टू बी रिपीटेड, द ट्रांजैक्शन टेंड टू बी रिपीटेड। मैम रिपीट मैम। मैंने कहा द साइकोलॉजिकल गेम इज अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन विद 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। द ट्रांजैक्शन, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है द ट्रांजैक्शंस टेंड टू बी रिपीटेड, द ट्रांजैक्शन टेंड टू बी रिपीटेड, ठीक है। दूसरा है दे मेक सेंस ऑन, दे मेक सेंस ऑन, they make sense on superficial or social level, they make feel on superficial or social level. And the third one is one or more of the transaction is, one or more of the transaction is ulterior, spelling hoga ULTERIOR, ulterior. What do you mean by ulterior? When we say something but it means some another thing, ठीक है, किसी चीज को मैनिपुलेट करके बोलना। साइकोलॉजिकल गेम इज व्हाट, व्हेन यू मैनिपुलेट योर थिंग्स, ठीक है, दैट विल कम अंडर साइकोलॉजिकल गेम, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉजिटिव नहीं माना जाता है, साइकोलॉजिकल गेम में इस चीज को हम लोग पॉजिटिव नहीं मानते। क्लियर? ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है साइकोलॉजिकल गेम का। तो ये था आप लोगों का ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। अब हम लोग शुरू करेंगे लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का है, लेट मी शेयर योर सिलेबस। एक्सक्यूज मी मैम, मैम इसका पीडीएफ दीजिएगा। 1 मिनट। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी रिपीट करना होगा। यस मैम। 2 3 4, फाइन। लीडरशिप, गिव द हेडिंग लीडरशिप। Leadership is the process of, leadership is the process of, leadership is the process of influencing and supporting, influencing and supporting, influencing and supporting others to work enthusiastically, to work enthusiastically towards achieving objectives, towards achieving objectives. Leadership. इन्फ्लुएंसिंग के बाद क्या बोले? रिपीट कर रही हूँ। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ influencing and supporting others to work enthusiastically towards achieving objective. बुलेट पॉइंट बनाते चलिए और लिखते चले जाइए, ठीक है। AKU में ये सजेस्टेड है कि जो भी लिखिए क्रिस्प लिखिए और पॉइंट वाइज लिखिए, तो मार्क्स अच्छा आता है। हाँ, towards achieving objectives, towards achieving objectives, ठीक है। डन। नेक्स्ट, leadership is a continuous process of behavior. Leadership is a continuous process of behavior. Leadership is a continuous process of behavior. It is not one short activity. उसी में है, continuation में, it is not one short activity. It is not one short activity. Roshni, I am removing you.
Ma'am, it is not. It is not one shot activity. Pratik Anand, you need to stay there without turning on your camera. Then next is Rishabh. ऋषभ आपका भी ऑफ रहना है. बढ़िया. और किसी का ऑफ रखना है? ऋषिराज. बढ़िया, आप भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं. और रोहित राज. आयुष. ये सब लोग को मैं रिमूव कर रही हूँ. When you don't know how to obey, then be there. सलोनी. क्या बात है, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं इस कैटेगरी में. यस मैम, हम क्लास कर रहे हैं, बस कैमरा ऑन नहीं है. कैमरा ऑन रखना है. मैम डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार. तो वाईफाई लगाइए ना. दिस इज द न्यू नॉर्मल, यू नो दैट. मैम कुछ दिन में लग जाएगा, सॉरी. ठीक है, शुरू किया जाए. कहाँ थे हम लोग? कंटिन्यूएशन प्रोसेस है लीडरशिप. ठीक है, इट इज नॉट अ वन शॉट एक्टिविटी. डन. Let's proceed now. It is a relationship. Next bullet point. It is a relationship between a leader. It is a relationship. It is a relationship between a leader and his followers for achieving common goal. For achieving common goal. Next, the followers work willingly. The followers work willingly and enthusiastically to achieve those goals. Full stop. So there is no coercive, COERCIV. सो के बाद So when they achieve this goal के बाद achieve those goal. Full stop. So there is no coercive. Spelling मैं बता रही हूँ. COERCIVE. So there is no coercive force for attainment of objective. कोर्सिव कहने का मतलब क्या होगा कि कोई फॉलोअर फोर्सफुली काम नहीं करता. अगर लीडर्स अच्छे होते हैं तो वो विलिंगली काम करते हैं. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, लीडर्स फील द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल. Leaders feel the importance of individuals, give them recognition and convey them about the importance of activities performed by them. Convey के बाद कौन में? मैम लीडर फील द इंडिविजुअल के बाद बताइए मैम. सुनिए, लीडर्स फील द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, गिव देम रिकॉग्निशन and convey them about the importance of activity performed by him. Done. Next is leadership is exercised. मैम कन्वे के बाद convey them about the importance of activity performed by them. Done. यस मैम. Next, leadership is exercised
Leadership is exercised in a particular situation. Leadership is exercised in a particular situation. Leadership is exercised in a particular situation. Done. Leadership is exercised in a particular situation. So leadership style may be different under different situation. Leadership style may be different under different situation. Different under different situation. Different leadership style आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे. अब डिफरेंस आपको लिखना है लीडरशिप और मैनेजमेंट. लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. 3 टेबल बनेगा. ठीक है, एक होगा बेसिस ऑफ डिफरेंस, एक होगा आपका लीडरशिप, एक होगा आपका मैनेजमेंट. 3 टेबल फॉर्म होगा. नंबर 1 बेसिस ऑफ डिफरेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. बस पॉइंट वाइज में लिखवा रही हूँ, मतलब उतना सेंटेंस में नहीं, बस पॉइंटर्स में लिखवा रही हूँ. नंबर 1 सोर्स ऑफ पावर. बेसिस ऑफ डिफरेंस में लिखेंगे सोर्स ऑफ पावर. सोर्स ऑफ पावर. सोर्स ऑफ पावर में लीडरशिप में होगा पर्सनल एबिलिटीज. पर्सनल एबिलिटीज. और मैनेजमेंट में आपका लिखिए ऑथोरिटी डेलीगेटेड. मैनेजमेंट में ऑथोरिटी डेलीगेटेड. ऑथोरिटी डेलीगेटेड. फोकस यहाँ पे होगा विजन. बेसिस ऑफ डिफरेंस में सेकंड पॉइंट है फोकस. और यहाँ होगा लीडरशिप में होगा विजन एंड पर्पस. सेकंड पॉइंट है बेसिस ऑफ डिफरेंस का फोकस. लीडरशिप में होगा फोकस, इसमें रहता है विजन एंड पर्पस पे. और मैनेजमेंट में फोकस रहता है ऑपरेटिंग रिजल्ट्स पे. ऑपरेटिंग रिजल्ट्स पे. डन. थर्ड में अप्रोच लिखेंगे. अप्रोच ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच है आपका लीडरशिप. ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच. और एक होता है ट्रांजैक्शनल अप्रोच. ये दोनों अप्रोचेस आगे हम लोग को पढ़ना है डिटेल में इसी लीडरशिप में. ठीक है, ये 2 टाइप का लीडरशिप स्टाइल होता है. ट्रांसफॉर्मेशनल किसको कहते हैं, ट्रांजैक्शनल किसको कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे आप. नेक्स्ट प्रोसेस. नेक्स्ट अप्रोच में लीडरशिप में ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच. ट्रांसफॉर्मेशनल. हाँ. और मैनेजमेंट ट्रांजैक्शनल. ट्रांजैक्शनल. ठीक है. प्रोसेस में आप लीडर में लिखिए, लीडरशिप में लिखिए इंस्पायरेशनल या इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन. प्रोसेस में इंस्पिरेशन और मैनेजमेंट में कंट्रोल. समझ आया. लीडरशिप में हम फोकस करते हैं लोगों को इंस्पायर करने पे, और यहाँ मैनेजमेंट में हम लोग फोकस करते हैं लोगों को कंट्रोल करने पे. डन. नेक्स्ट लिखिए एम्फेसिस. एम्फेसिस कलेक्टिवली. लीडरशिप में होगा कलेक्टिवली. बेसिस ऑफ डिफरेंस में आप लिखेंगे एम्फेसिस, और लीडरशिप में लिखेंगे कलेक्टिवली, और मैनेजमेंट में लिखेंगे इंडिविजुअलिज्म. और फ्यूचरिटी लिखेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस में. फ्यूचरिटी FUTURITY. तो इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच होता है आपका लीडरशिप में. प्रोएक्टिव. 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 एंड दिस वन इज मैनेजमेंट में रिएक्टिव. लीडरशिप में रिएक्टिव. मैनेजमेंट मैनेजमेंट में रिएक्टिव. एंड लास्ट वन इज टाइप. टाइप में लीडरशिप में फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, लेकिन मैनेजमेंट में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल होगा. ठीक है, इतना ही था डिफरेंस. और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरीज करना शुरू करेंगे. ठीक है मैम. लास्ट पॉइंट क्या है मैम? टाइप मैंने बताया. लीडरशिप में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है. ठीक है, और मैनेजमेंट में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल होता है. मैम सोर्स ऑफ पावर में लीडरशिप में क्या था? सोर्स ऑफ पावर तो फर्स्ट ही पॉइंट है आपका, पर्सनल एबिलिटीज है लीडरशिप का, और इधर आपका मैनेजमेंट का है ऑथोरिटी डेलीगेटेड. ऑथोरिटी डेलीगेटेड का होता है. ठीक है, 2 टाइप का चाइल्ड ईगो स्टेट होता है. वन इज नेचुरल, सेकेंड वन इज
एडेप्टिव। नेचुरल जो जनरली बच्चे होते हैं, नेचुरल बच्चे कैसे होते हैं? मैम एग्रेसिव होते हैं, Tantrum टेंट्रम throw शो करते हैं, टेंट्रम थ्रो करते हैं, अटेंशन सीक करते हैं, ये नेचुरल चाइल्ड ईगो स्टेट है। ठीक है, एक होता है एडेप्टिव। एडेप्टिव मतलब वो कुछ बच्चे होते हैं काफी ट्रेंड होते हैं, पेरेंट्स इतना ट्रेन कर देते हैं कि उनको पता होता है बैठने का सलीका, बाहर जाए तो कैसे रहेंगे, कैसे बिहेव करेंगे। शॉप में जाते हैं तो हाँ भाई, बहुत बच्चे देखते होंगे कि पूरा ये चीज चाहिए तो चाहिए, है ना, तो ये Yes, चीज ma'am. चाहिए तो चाहिए, उसमें वो मतलब वहां बैठ जाएंगे कुछ बहुत लोग दुकान पे करते हैं ना, तो दैट वन इज नेचुरल। एंड एडेप्टिव क्या हुआ कि नहीं, ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए शॉप में, तो वैसे नहीं करो, बस एक बार चाहिए ना बोल दिया गया, ओके बस। ठीक है, तो और ये मैम चाइल्ड ईगो स्टेट जो हम लोग एक्चुअल चाइल्डहुड से जो अडेप्ट करते हैं हम लोग, वो पेरेंट है। पेरेंट के बारे में मैं वापस रिपीट करवा रही हूँ, 3 तरह का ईगो स्टेट होता है, पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड। पेरेंट ईगो स्टेट क्या हुआ कि जो आप अपने बचपन में, जब आप चाइल्डहुड स्टेज में थे, तो आपके केयर टेकर कैसे बिहेव करते थे, तो उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड आप ग्रैब करते हैं और वैसे आप बिहेव करते हैं, दैट विल कम अंडर पेरेंट। ठीक है, तो पेरेंट भी अगेन 2 तरह के पेरेंट इसमें बताया गया है पेरेंट ईगो स्टेट में, वन इज नर्चरिंग एंड सेकंड वन इज क्रिटिकल। नर्चरिंग वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, क्रिटिकल जो पहले जनरेशन के मतलब ज्यादा ऑथोरिटेटिव टाइप पेरेंट्स होते थे, क्रिटिसाइज करेंगे ताकि हम लोग बेटर करें। क्रिटिसाइज करना, थोड़ा ऑथोरिटेटिव दिखाना, थोड़ा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन में बांधे रखना। ठीक है, दैट विल कम अंडर क्रिटिकल। एडल्ट में क्या होता है कि हम पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब जो आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, ठीक है आप करें, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, एक एज के बाद आप खुद से डिफरेंशिएट करने लगेंगे कि दिस वन इज राइट। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स मान लीजिए ऑथोरिटेटिव थे, ठीक है, अगर हम लोगों के पेरेंट्स ऑथोरिटेटिव हैं, लेकिन हम जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर ऐसा होगा कि नहीं, नर्चरिंग होना चाहिए। जैसे मैं अपने बारे में अगर मैं बात करूं, हम लोग के पेरेंट्स थोड़े ऑथोरिटेटिव थे, अब हम लोग धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से जाने कि इस जनरेशन के बच्चे को, यानी मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ, इस जनरेशन के बच्चे को ऑथोरिटेटिव तरीके से मैं नहीं हैंडल कर सकती हूँ, तो नर्चरिंग होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अपने एक्सपीरियंस से मैंने सीखा कि नर्चरिंग होना जरूरी है, राइट। तो जब एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दैट विल कम अंडर एडल्ट ईगो स्टेट। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से लॉजिकल होके, रीजनिंग बेस्ड क्या सही है क्या गलत अगर हम लोग कर रहे हैं, दैट विल कम अंडर एडल्ट ईगो स्टेट। फाइन, और चाइल्ड अभी मैंने बताया। क्लियर? और कोई क्वेश्चन है? नो मैम।